Hello everyone, welcome to Pitambara Educators. In this video, we are going to discuss Unit 5, that is Green Skill for class 10th IT students. Yes, in term 2, you are having entrepreneurial skills. Entrepreneurial skills we have discussed yesterday. I have posted the video. If you have not checked the video, you can go and check. एंड नाउ वी विल डिस्कस ग्रीन स्किल्स और हम देखेंगे कि इससे कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं फॉर द एग्जामिनेशन. सो वी आर गोइंग टू प्रिपेयर दिस यूनिट. इन दिस यूनिट देर आर 2 सेशंस. वन इज़ व्हाट इज़ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट पूरा समझाया कि क्या होता है. एंड देन सेकेंड सेशन में इट इज़ योर रोल और आई शुड से आर रोल इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट. इट इज़ एक्सप्लेन्ड. So in the starting 2 paragraphs only the introduction is given, like we human beings are dependent on natural environment for our basic needs, like we take water, we take food from the environment. In the same way we use wood for construction of home, and for fuel we use wood. But what is happening with the economic development? There is increase in environmental pollution. So for example, when we are developing cities, so deforestation is there, then due to vehicles, due to factories, due to industrialization, pollution is increasing. फॉर एग्ज़ाम्पल इंट्रोडक्शन ऑफ हाई इनपुट एग्रीकल्चर. तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए क्या किया गया कि एग्रीकल्चर में ऐसा कुछ किया जाए जिससे कि जो भी क्रॉप्स हैं हों वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस हों और उनमें कोई भी कोई भी पेस्ट ना हो, कुछ भी डिफेक्ट ना हो, ऐसा कह सकते हैं हम. तो उसके लिए क्या किया गया है, फर्टिलाइज़र यूज़ किए जाते हैं, पेस्टिसाइड्स यूज़ की जाती है, हाइब्रिड क्रॉप्स क्रिएट की जाती है, जिसकी वजह से सॉइल एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है. So we need to plan the use of resources in a sustainable manner so that we and our future generation can enjoy good environment. तो because of these environmental pollution and environmental degradation, हमें क्या करना चाहिए, हमें जो भी resources हैं we should use them judiciously, जिससे क्या हो फ्यूचर जनरेशन के लिए भी वो रिसोर्सेज बच सकें, वो लोग भी एक गुड हेल्दी एनवायरनमेंट में रह सकें, एंड वी कैन ऑल्सो एंजॉय दैट एनवायरनमेंट. Now the main session begins here. So there are some questions, are we planting more trees or we are only destroying them for use? ऐसे कुछ questions पूछे हैं कि like we are throwing garbage and polluting the environment. Are we giving back to nature whatever we are using? Like if we are cutting trees for our use, तो क्या फिर हम फिर से plant लगाते हैं? And if we are not thinking about the future generation, we are using natural resources without thinking about the future generation कि उनके लिए भी ये सारी चीज़ें रहेंगी या नहीं रहेंगी. So if we are not thinking, then it means we are just thinking about our immediate development and not the long term development. So if we are using these natural resources with a thought for future generation also कि हमें future generation के लिए भी ये सारी चीज़ें रखनी है, then we are using those natural resources in a sustainable manner. Now you know the meaning of word sustainable. So here the definition of sustainable development is given. So obviously जब हम क्या कर रहे हैं, development कर रहे हैं in sustainable manner, that is sustainable development. अब sustainable क्या होता है कि हम जो भी चीज़ कर रहे हैं future generation के बारे में सोचते हुए कर रहे हैं, then it is sustainable. So it is the development that satisfies the need of the present. इट मीन्स कि जो भी प्रेजेंट के लोग हैं उनकी नीड सेटिस्फाई कर रहा है डेवलपमेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द कैपेसिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन्स. तो जो आने वाली जनरेशन्स हैं उनके साथ कोई भी उनके लिए जो भी चीज़ें चाहिए वो भी अभी बची हुई है, उनके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो रहा है. गारंटीइंग द बैलेंस बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ, केयर फॉर द एनवायरनमेंट एंड सोशल वेलबींग. तो हम इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में तो सोच ही रहे हैं, उसके साथ साथ एनवायरनमेंट और जो भी सोशल वेलबींग मीन्स जो भी सोसाइटी है उसकी हेल्थ के बारे में भी सोच रहे हैं, देन इट इज़ सस्टेनेबल डेवलपमेंट. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी डेफिनेशन यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, लाइक डिफाइन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और मे बी कि आपको डेफिनेशन दी हो, द डेवलपमेंट दैट सेटिस्फाइज द नीड ऑफ प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द कैपेसिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन इज कॉल्ड डैश. तो आपको पता होना चाहिए कि दिस टाइप ऑफ डेवलपमेंट इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट. Now next is why sustainable development is important. What is its importance? So obviously अगर हम sustainable development follow नहीं करेंगे, if we are not planning anything, कोई हम strategy नहीं follow कर रहे हैं, then what will happen? Soon the natural resources will be completely depleted और उसकी वजह से क्या होगा? There will be a serious environment problem. Environmental problems like melting of glaciers,
climate change, global warming, greenhouse effect, even much worse than those we are facing at present. तो जैसे अभी प्रेजेंट में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज, कहीं पे भी फ्लड आ जाती है, तो इससे भी बुरा भी हो सकता है इफ़ यू आर नॉट गोइंग टू अडॉप्ट दिस सस्टेनेबल डेवलपमेंट. And how this sustainable development can be implemented, it will be done if each individual practices a sustainable lifestyle. तो ऐसा नहीं है कि ओनली गवर्नमेंट इज़ फॉलोइंग इट या कोई पर्टिकुलर पर्सन, कोई ऑर्गेनाइजेशन इसे फॉलो करे. एवरी इंडिविजुअल हैज़ टू फॉलो दिस लाइफ स्टाइल कि हम जो भी रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हैं वी हैव टू यूज़ दैम केयरफुली with awareness, then only sustainable development is possible. So here a definition of sustainable development is given, which is given by World Commission on Environment and Development 1987. और definition क्या है आपकी? Development that meet the need of present. तो जो भी present generation है उनकी भी सारे needs जो है meet हो जाए, but नो कॉम्प्रोमाइज़ विद द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन्स टू मीट देयर ओन नीड्स. तो जो भी फ्यूचर जनरेशन है उनकी नीड्स भी मीट होनी चाहिए, उनके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए. सो दिस डेफिनेशन इज़ शॉर्टर दैन द प्रीवियस वन. तो आप इस डेफिनेशन को भी लर्न कर सकते हैं. और इवन ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट. सो यू शुड नो दिस डेफिनेशन. एग्जाम्पल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज़ कि जो भी एग्रीकल्चर डेवलपमेंट हम करते हैं, यानी कि जो भी एग्रीकल्चर क्रॉप के प्रोडक्शन में इंक्रीज़ करना है, उसके लिए कोई भी पेस्टिसाइड, कोई भी केमिकल यूज़ नहीं होना चाहिए और इस तरीके से उसका प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो जिससे कि ह्यूमन बींग्स को या फिर कोई भी नेचुरल रिसोर्सेज को लाइक सॉइल, वाटर, इन सब में कुछ भी क्या हो, इनको हार्म ना पहुँचे. नाउ द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट. रिलेटेड टू मीन्स कि अगर हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट फॉलो नहीं किया तो व्हाट प्रॉब्लम्स वी कैन फेस. सो देयर आर 3 मेजर प्रॉब्लम्स. वन इज़ फूड. सो वी नो कि क्या हो रहा है, आपकी जो भी एग्रीकल्चरल लैंड है वो कम होती जा रही है बिकॉज पीपल आर बिल्डिंग इंडस्ट्रीज़, फैक्ट्रीज़ या फिर अपने घर बना रहे हैं. तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि दे आर यूजिंग मोर एंड मोर लैंड. सो एग्रीकल्चरल लैंड जो है कम होती जा रही है. तो उसकी वजह से क्या होगा, ओब्वियसली देयर विल बी द स्कैरसिटी ऑफ फूड ही नहीं प्रोड्यूस हो पाएगा और ऊपर से सॉइल न्यूट्रिएंट जो हैं वो भी डिप्लीट होते जा रहे हैं. तो आपकी जो एग्रीकल्चरल लैंड है या नॉर्मल लैंड जिसमें आप फूड ग्रो करते हैं वो फर्टाइल ही नहीं रहेगी, जो बिकॉज जो भी सॉइल न्यूट्रिएंट्स हैं वो क्या हो रहे हैं, वो ख़त्म होते जा रहे हैं बिकॉज ऑफ केमिकल्स. सो इसकी वजह से क्या हो सकता है, फूड प्रॉब्लम आ सकती है. नेक्स्ट इज़ वाटर. वाटर कहाँ से मिलता है हमें? वी गेट फ्रेश वाटर फ्रॉम रिवर्स एंड पॉन्ड्स फॉर ड्रिंकिंग एंड क्लीनिंग. बट क्या हो रहा है, वी आर डंपिंग द गार्बेज इनटू द रिवर्स एंड पॉन्ड्स आर गेटिंग पॉल्यूटेड. इसकी वजह से क्या होगा कि कुछ टाइम बाद हमें क्लीन वाटर मिलेगा ही नहीं. सो वी विल फेस प्रॉब्लम. नेक्स्ट इज़ प्रॉब्लम ऑफ फ्यूल. सो ऑब्वियसली फॉर फ्यूल वी यूज़ वुड फ्रॉम ट्रीज़. तो क्या हो रहा है, कंस्ट्रक्शन ऑफ होम्स, फर्नीचर, फ्यूल के लिए वुड यूज़ हो रहा है. इसके लिए क्या हो रहा है, इतना ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन हो रहा है जिसकी वजह से क्लाइमेट जो है इफ़ेक्ट हो रहा है. सो व्हाट काइंड ऑफ क्लाइमेट चेंजेस देयर? वी आर फेसिंग प्रॉब्लम ऑफ फ्लड्स, एक्सट्रीम कोल्ड और हीट आर सीन इन मैनी प्लेसेस विच अफेक्ट द पीपल लिविंग देयर. सो व्हाट इज़ द यूज़र फ्रेंडली वे फॉर प्रोडक्शन ऑफ पावर? तो यहाँ से क्वेश्चन भी आ सकता है. इवन आपको याद होगा कि सैम्पल पेपर में एक क्वेश्चन आया है, गिव द एग्जाम्पल ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ सोलर. तो वो क्या था, उसका आंसर यही था, चारंका गुजरात सोलर पार्क. सो ऐसे ही आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ द यूज़र फ्रेंडली वे ऑफ प्रोड्यूसिंग पावर, दैट इज़ सोलर एनर्जी, दैट इज़ एनर्जी फ्रॉम द सन विच इज़ अनलिमिटेड. सो हेयर एग्जाम्पल इज़ गिवन कि लार्ज स्केल प्रोडक्शन हो रहा है सोलर पावर का. कहाँ पे? चारंका गुजरात सोलर पार्क में. दिस बैरन लैंड विथ वाइल्ड वेजिटेशन हैज़ अ मेगा सोलर पावर प्लांट ऑफ 600 मेगावाट. तो इतना बड़ा यहाँ पे सोलर पावर प्लांट है जिसकी वजह से क्या हुआ है, जो भी गुजरात के लोग हैं उनकी डिपेंडेंस ख़त्म हो गई है ऑन नॉन रिन्यूएबल फॉसिल फ्यूल. सो सोलर पावर इज़ अ रिन्यूएबल रिसोर्स. सो गुजरात की जो भी नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं उन पे जो डिपेंडेंस है दैट इज़ रिड्यूस्ड. द पीपल ऑफ चारंका हैव बेनिफिटेड एज दे हैव अ गुड सोर्स ऑफ इनकम. तो इससे इनकी इनकम भी बढ़ रही है एंड दिस विल हेल्प फ्यूचर जनरेशन इन द नेक्स्ट 40-50 ईयर्स टू कम. तो इससे फ्यूचर जनरेशन को भी हेल्प मिलेगी क्योंकि जो नॉन रिन्यूएबल फॉसिल फ्यूल्स हैं उनका यूज़ अब कम हो गया है. सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंक्लूड्स. तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट में क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है. रिड्यूसिंग एक्सेसिव यूज़
ऑफ रिसोर्सेज एंड एनहांसिंग रिसोर्सेज कंजर्वेशन। तो रिड्यूस, ये हमने पढ़ा भी है कि रिड्यूस, रिसाइकल, रीयूज़ of waste materials, scientific management of renewable resources, especially bioresources, planting more trees. These are included in sustainable development. There are few more points. Green grassy patches and trees to be interspersed between concrete buildings. तो buildings के बीच बीच में trees और green grassy patches लगाने चाहिए. Using more environment friendly material and biodegradable material. Use of technology which are environment friendly and बेस्ड ऑन एफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट दिया है आपकी जो स्टडी मटेरियल है सीबीएसई की वेबसाइट में, तो आपको पता है कि ये वाली पीडीएफ भी है, तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट दिया है दैट इज़ 4 आवर्स एंड 1 यू। इन दिस वे वी कैन कंट्रीब्यूट टू क्रिएट अ सस्टेनेबल सोसाइटी। तो यहाँ पे 4 आवर्स दिए हैं और 1 यू दिया है। तो व्हाट आर दीज 4 आवर्स? रिफ्यूज़, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल एंड अपसाइकल। तो ये 1 यू जो है दैट इज अपसाइकल। रिफ्यूज़ मीन्स वी शुड रिफ्यूज़ ऑल द प्रोडक्ट्स विच आर हार्मफुल फॉर द एनवायरनमेंट। तो ऐसे प्रोडक्ट जो कि एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल हैं उन्हें हमें रिफ्यूज़ कर देना चाहिए। रिड्यूस मीन्स कि जो भी गार्बेज है, जो भी वेस्ट मटेरियल है, उसे रिड्यूस करना चाहिए। एंड देन रीयूज़, तो जो भी प्रोडक्ट्स हैं वी कैन रीयूज़ दैम, अगर पॉसिबल है उन्हें रीयूज़ करना। अदरवाइज वी कैन गिव देम फॉर रिसाइकलिंग, कि उन प्रोडक्ट्स की रिसाइकलिंग कर दी जाए, उन्हें एटलीस्ट वेस्ट मटेरियल्स में ना फेंका जाए, उनको गार्बेज की तरह उनको डंप ना किया जाए। एंड देन अपसाइकिल, तो जो भी पुराने प्रोडक्ट्स हैं उनकी अपसाइकलिंग मीन्स उनको फैक्ट्रीज़ में यूज़ करके, मतलब फैक्ट्रीज़ में मशीन के थ्रू या तो उन्हें नया लुक दिया जाए या फिर मैनुअली, या फिर पर्सन खुद मैनुअली उसमें क्या कर सकते हैं, उसको कुछ नया लुक दे सकते हैं जिससे कि अगेन इट कैन बी यूज्ड बाय ह्यूमन बींग्स। तो जो भी पुराने प्रोडक्ट्स हैं उन्हें नया लुक दे के यूज़ करना इज़ अपसाइकिल। So by using these 4 R's and 1 U in our life, that is refuse, reduce, reuse, recycle and upcycle, we can contribute to the sustainable development. Now this is very important topic, that is sustainable development goals. तो sustainable development goals क्या हैं? These are universal call of actions to end poverty, protect the planet and ensure that all people enjoy peace and prosperity. तो इसका मोटिव क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का? कि जो भी पोवर्टी है वो कम हो जाए, एंड हो जाए, कोई भी पुअर ना रहे, एंड देन प्लैनेट भी प्रोटेक्ट हो, कोई भी हार्मफुल इफ़ेक्ट्स ना हो प्लैनेट पे, और जो भी लोग हैं वो पीसफुली, प्रॉस्परसली अपनी लाइफ जिएँ। Now who has launched it? Which organization has launched these sustainable development goals? तो आपको पता होना चाहिए यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने इसको लॉन्च किया। सो ये क्वेश्चन आपका सैम्पल पेपर में भी आया, लाइक विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ फॉर्म्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, या फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कितने हैं, कब लॉन्च हुआ था सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। सो यू शुड लर्न, एक्चुअली ये सारी चीज़ आपको लर्न करनी पड़ेगी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो हैं 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं, और फुल फॉर्म ऑफ SDG भी पूछा गया है कहीं पे, तो आपको पता होना चाहिए कि SDGs का फुल फॉर्म क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ये भी पूछा जा सकता है किसने इसको लॉन्च किया है। इट वॉज लॉन्च्ड एट द यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट सबमिट। तो ये सबमिट हुई थी जिसमें इसको लॉन्च किया गया था, एंड इट इज़ लॉन्च्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन दैट इज़ यूनाइटेड नेशंस। और किस लोकेशन में? न्यूयॉर्क में ये सबमिट हुई थी। इन 2015 में ये जो आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स थे ये फॉर्म हुए थे। फॉर्मिंग 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो 2030 के लिए ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट एजेंडा बनाया गया था। इट हैज़ सेट टारगेट्स दैट द कंट्रीज हैव टू वर्क टूवर्ड्स एंड अचीव बाय 2030। तो वो कहते हैं कि उनका क्या था कि ये जो भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं ये 2030 तक अचीव हो जाने चाहिए। सो लेट्स सी व्हाट आर दी 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ऑल द गोल्स आर गिवन इन दिस पिक्चर। फर्स्ट इज नो पॉवर्टी, next is zero hunger, third one is good health and well-being, then quality education, gender equality, clean water and sanitation, affordable and clean energy, decent work and economic growth। तो आप अगर सैम्पल पेपर देखेंगे, लाइक ऑल द सैम्पल पेपर्स आर देयर रिलेटेड टू स्किल एजुकेशन सब्जेक्ट्स, तो उनमें अगर क्वेश्चन देखेंगे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से कैसे क्वेश्चंस आए हैं,
So like how many sustainable development goals are there, who has launched it, in which year it was launched. और इवन ऐसे क्वेश्चंस भी आए हैं लाइक व्हाट आर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स रिलेटेड टू वाटर. तो लाइक एक क्वेश्चन है व्हाट आर द गोल्स रिलेटेड टू वाटर, तो दैट विल बी क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, लाइफ बिलो वाटर. तो जो भी वाटर से रिलेटेड यहाँ पर आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स दिख रहे हैं आप वो लिख सकते हैं उसमें. ऐसे ही अगर लैंड से रिलेटेड होगा तो ऑब्वियसली लाइफ ऑन लैंड. सो इट मीन्स आपको ये 17 डेवलपमेंट गोल्स जो हैं अच्छे से लर्न होने चाहिए, तभी जाके आप उनको रिलेट कर सकते हैं कि ये वाला जो गोल है वो किससे रिलेटेड है. इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, रिड्यूस्ड इनइक्वालिटीज़, sustainable cities and communities, responsible consumption and production, climate action, peace, justice and strong institutions, partnership for the goal. तो ये 17 goals जो हैं आप अच्छे से लर्न कर लीजिए, जिससे कि अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है सो यू कैन ईजिली आंसर. नाउ व्हाट आर द स्किल्स रिक्वायर्ड बाय द पर्सन जिसको कंट्रीब्यूट करना है इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट या फिर टूवर्ड्स एनवायरनमेंट. सो ही शुड बी एनवायरमेंटली अवेयर, एनवायरमेंटल अवेयरनेस होनी चाहिए उसके पास, एंड ही शुड बी विलिंग टू लर्न अबाउट सस्टेनेबल डेवलपमेंट. तो विल पावर भी होनी चाहिए कि हाँ हमें लर्न करना है अबाउट सस्टेनेबल डेवलपमेंट, देन ओनली ही विल बी एबल टू कंट्रीब्यूट टूवर्ड्स एनवायरमेंट. इफ़ यू आर रिस्पॉन्सिबल अबाउट आवर लाइफ, अगर हम सारी चीज़ें प्रॉपरली यूज़ कर रहे हैं, जुडिशियसली यूज़ कर रहे हैं रिसोर्सेज, तो क्या होगा लाइक एट होम, इन स्कूल, एट आवर वर्क प्लेस. सो ऑब्वियसली वी आर गोइंग टू कंट्रीब्यूट टूवर्ड्स एनवायरनमेंट. तो हम अपने आसपास की चीज़ें, अगर अपने आसपास का एनवायरनमेंट हेल्दी रख रहे हैं, कोई पॉल्यूशन नहीं क्रिएट कर रहे हैं, सो वी आर कंट्रीब्यूटिंग टूवर्ड्स एनवायरनमेंट. हेयर एग्जाम्पल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव इज़ गिवन. म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने क्या किया, प्लास्टिक बैन किया. मैंगलोर में, इवन अब तो मोस्टली सारी सिटीज़ में जो है प्लास्टिक जो है बैन हो चुका है. सो एक एंटरप्रेन्योर है मिस्टर अवस्थ हैच, जिन्होंने क्या किया, इको फ्रेंडली ऑल्टरनेटिव फाइंड किया फॉर प्लास्टिक बैग्स, कि हम प्लास्टिक बैग के अलावा क्या चीज़ यूज़ कर सकते हैं. सो ही मेड अ 100% बायोडिग्रेडेबल बैग विच कैन डिजॉल्व इन हॉट वाटर एंड डिकम्पोज इन नेचुरल एनवायरनमेंट. तो लाइक प्लास्टिक बैग्स जो होते हैं वो डिग्रेड नहीं होते हैं. सो ही हैज़ फाउंड अ बायोडिग्रेडेबल बैग जो क्या होता है हॉट वाटर में पूरा डिज़ोल्व हो जाता है और नेचुरल एनवायरनमेंट में डिकम्पोज हो जाता है. तो ये जो मेथड है, ये ऑल्टरनेटिव बहुत सारी कंट्रीज़ अब क्या कर रही हैं, यूज़ कर रही हैं. इन द सेम वे वन मोर एंटरप्रेन्योर इज़ देयर, नारायणा पीसापति. उन्होंने क्या किया, ही हैज़ मेड एडिबल कटलरी. तो उन्होंने जो कटलरी सेट है वो एडिबल यानी कि हम उसे खा सकते हैं, एंड इट इज़ मेड आउट ऑफ अ ग्रेन. तो जो भी स्पून्स है दे कैन बी ईटन, even if they are not eaten they will easily decompose in the soil enriching it. तो obviously वो जो भी बना है वो ग्रेन से बना है, तो जब वो सॉइल में डिकम्पोज होगा that will enrich the soil. नेक्स्ट इज सस्टेनेबल प्रोसेसेस. तो ऐसी कौन सी प्रोसेसेस हैं जो हमारे एनवायरनमेंट को डिग्रेड नहीं कर रही हैं, दे आर हेल्पिंग आवर एनवायरनमेंट. दैट इज़ ऑर्गेनिक फार्मिंग, वर्मी कंपोस्टिंग, रेन वाटर हार्वेस्टिंग. तो इससे क्या हो रहा है, वाटर आपका सेव हो रहा है. ऑर्गेनिक फार्मिंग से कोई भी केमिकल यूज़ नहीं होते हैं, कोई भी केमिकल पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स यूज़ नहीं होते हैं इन ग्रोइंग क्रॉप्स. They use organic and natural fertilizers such as cow dung to help in growing crops. This helps in better quality chemical free crops while at the same time maintaining the soil quality for future use. This is the true example of sustainable development. So अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है गिव एग्जाम्पल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट या गिव एग्जाम्पल ऑफ सस्टेनेबल प्रोसेस, तो आप रेन वाटर हार्वेस्टिंग मेंशन कर सकते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग मेंशन कर सकते हैं. सो दीज ऑल आर कंट्रीब्यूटिंग टूवर्ड्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट. सो ये सेशन बहुत इजी था. आपने ये सारी चीज़ें तो साइंस में भी पढ़ी होंगी, एसएसटी में पढ़ी होंगी, बट इसमें क्या इंपॉर्टेंट था जो थोड़ा सा यूनिक है, दैट इज़ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स. ये वाला इसमें जो टॉपिक है इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल. यहाँ से अगर क्वेश्चन आएंगे तो आपको आंसर इनके आने चाहिए. और इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये सोलर पावर पार्क वाला था, ये आपको पता होना चाहिए. बाकी तो आप अपने मन से भी थोड़ा बहुत लिख सकते हैं ना. ये चीज़ें तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट और प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये तो आपने साइंस और एसएसटी में पढ़ी होंगी. नाउ लेट्स डिस्कस सेशन 2, दैट इज़
आर रोल इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो यहाँ पे फर्स्ट पैराग्राफ में सेम थिंग बताइए कि वी आर यूजिंग नेचुरल रिसोर्सेज टू मच, जिससे कि हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है, फ्यूचर जनरेशन है, दे कैन सफ़र इफ़ यू आर नॉट गोइंग टू अडॉप्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सेम चीज़ यहाँ पे है कि फैक्ट्रीज जो है स्मोक प्रोड्यूस करती हैं, जिसकी वजह से एयर पॉल्यूट होता है। गार्बेज जो भी होम से कलेक्ट होता है दैट इज़ डम्प्ड इनटू लैंडफिल्स, तो इसकी वजह से जो सॉइल है वो डिग्रेड हो रही है। तो नेचुरल रिसोर्सेज क्या हो रहे हैं, दे आर लिमिटेड एंड दे आर गेटिंग डिप्लीटेड। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है दैट इज़ इनिशिएटिव बाय मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज। तो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज ऑफ वाराणसी एंड रायबरेली ने क्या इनिशिएटिव लिया, दे इंट्रोड्यूस क्ले पॉट्स दैट इज कुल्हड़स टू रिप्लेस प्लास्टिक एंड पेपर कप्स एंड टू ब्रिंग बैक टेस्ट ऑफ ट्रेडिशन। तो कुल्हड़ को उन्होंने दोबारा से इंट्रोड्यूस किया, पहले भी यूज़ होते थे बट उसके बाद क्या होने लगे थे, प्लास्टिक एंड पेपर कप्स यूज़ हो रहे थे, जिसकी वजह से आपका एनवायरनमेंट डिग्रेड हो रहा था। सो दे स्टार्टेड यूजिंग कुल्हड़स। तो इसकी वजह से क्या हुआ, रिड्यूस कटिंग ऑफ ट्रीज़ फॉर मेकिंग पेपर कप्स। तो जो पेपर कप्स बनते हैं उनके लिए क्या होता है, वी आर यूजिंग ट्रीज़, तो उसका रिड्यूस हो गया, कटिंग ऑफ ट्रीज़ रिड्यूस हो गया। जॉब क्रिएशन फॉर पॉटर्स, तो इसके लिए क्या हुआ, जो भी आसपास के पॉटर्स थे उनकी जॉब क्रिएशन हो गई, तो इकोनॉमिक वेल्थ, इकोनॉमी इंक्रीज हुई इससे। देन रिड्यूस प्लास्टिक वेस्ट, सो इट ऑल्सो हेल्प्ड इन सेविंग एनवायरनमेंट। सो यहाँ से आपको एक इनिशिएटिव मिल गया फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट विच वॉज टेकन बाय मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज इन वाराणसी एंड रायबरेली। तो यहाँ से ऐसे क्वेश्चन भी आ सकता है लाइक मेंशन एनी 2 इनिशिएटिव्स फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो एक हो सकता है ये वाला कुल्हड़ वाला, बाकी हमने 2 पहले भी पढ़े जिसमें कि एक एडिबल कटलरी सेट था, दूसरा बायोडिग्रेडेबल बैग्स थे। और अगर ऐसा क्वेश्चन आता है लाइक व्हाट इज़ द इनिशिएटिव टेकन बाय मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज फॉर रिड्यूसिंग प्लास्टिक वेस्ट, तो यू शुड नो दैट इनिशिएटिव वाज इंट्रोडक्शन ऑफ क्ले पॉट्स दैट आर कुल्हड़s, which was done by Ministry of Railways in Varanasi and Raebareli. Now again a very important topic, that is our role towards sustainable development. तो हमने अभी 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स देखे थे, तो वो सब क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का पार्ट है। तो यहाँ पे एक एक करके हम क्या कर रहे हैं, वी आर गोइंग टू स्टडी कि हम किस तरीके से हेल्प कर सकते हैं इन कंप्लीटिंग और इन अचीविंग दैट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। सो फर्स्ट वन इज़ क्वालिटी एजुकेशन। तो इसमें हम कैसे एज अ इंडिविजुअल हेल्प कर सकते हैं, वी कैन यूज़ द फैसिलिटीज़ प्रेजेंट इन आर एरियाज। सो हमारे एरिया में जो भी एजुकेशन से रिलेटेड फैसिलिटीज़ अवेलेबल है हम वो यूज़ कर सकते हैं। देन वी कैन टेक आर फ्रेंड्स टू स्कूल। हम हमारे आसपास जितने भी लोग रहते हैं हम क्या कर सकते हैं, वी कैन आस्क देम टू जॉइन द स्कूल एंड हेल्प फ्रेंड्स स्टडी। तो जैसे अगर किसी फ्रेंड का पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, उसको पढ़ने का मन नहीं है, सो व्हाट वी कैन डू, वी कैन हेल्प देम इन स्टडिंग। वी कैन स्टॉप फ्रेंड्स फ्रॉम ड्रॉपिंग आउट ऑफ स्कूल। तो बहुत बार बच्चे क्या करते हैं, स्कूल छोड़ देते हैं when they don't like to study या फिर they are not getting any motivation for study. So we should stop them, we should encourage them for joining the school, for studying, for getting education. Next is clean water and sanitation. Now how can we contribute in this goal? By making efforts to make India free of open defecation, by building toilets and creating awareness towards sanitation, so we can make people aware about sanitation. Industrial pollution is polluting our water resources, which is near future will cause a scarcity of clean drinking and usable water. So we must take measurable steps by promoting awareness to keep सोर्सेज, वाटर सोर्सेज क्लीन। तो हम क्या कर सकते हैं, हम लोगों में अवेयरनेस फैला सकते हैं कि जो भी वाटर है उसे क्या होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए। हमें रिवर जो भी हमारे आसपास के लोग हैं और हमें खुद भी क्या करना चाहिए, जो भी रिवर के आसपास कूड़ा फेंकते हैं वो नहीं करना चाहिए। और लोगों को भी बताना चाहिए कि कभी भी रिवर में गार्बेज को डंप नहीं करना है। उसकी वजह से क्या होगा, आपका जो भी फ्रेश वाटर है वो क्लीन नहीं रहेगा, इट विल नॉट बी क्लीन टू ड्रिंक। सो यहाँ से ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं लाइक हाउ यू कैन मेक कॉन्ट्रीब्यूशन इन अचीविंग क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। नेक्स्ट इज अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। सो यहाँ से ऐसा क्वेश्चन आ सकता है लाइक एक्सप्लेन अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, या फिर विच एनर्जी कैन बी कंसिडर्ड एज अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। सो ऑब्वियसली जो सोलर एनर्जी है इट डज नॉट कॉज पोल्यूशन, सो इट इज़ क्लीन एनर्जी. And affordable means it is not very too much expensive.
तो इसलिए हम उसको बोल सकते हैं अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। इट डज़ नॉट रिक्वायर बर्निंग ऑफ नॉन रिन्यूएबल फ्यूल सच एज कोल। तो सोलर एनर्जी के लिए कोई भी नॉन रिन्यूएबल फ्यूल यूज़ नहीं होता है। वी आर मेकिंग एफर्ट्स टू इंक्रीज द सोलर पावर जनरेशन सो दैट आर इलेक्ट्रिसिटी नीड्स आर मेट। सो गवर्नमेंट इज़ मेकिंग एफर्ट इन इंक्रीजिंग सोलर पावर जनरेशन, जिससे कि जो भी इलेक्ट्रिसिटी नीड है उसके वजह से कोई भी पॉल्यूशन ना हो, कोई भी एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन ना हो। यूज़ ऑफ बायोगैस, तो बायोगैस भी क्या है, इको फ्रेंडली अल्टरनेटिव है नेचुरल गैस का। नेक्स्ट गोल इज डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। So how we can contribute in that? We can study and find good jobs to take care of ourselves and our family. वर्क हार्ड एंड कंट्रीब्यूट टू सोसाइटी। तो इससे क्या होगा, जब हमारी इकोनॉमिक कंडीशन इंप्रूव होगी सो ऑब्वियसली कंट्री की भी इकोनॉमिक कंडीशन इंप्रूव होगी। लर्न एंड डेवलप स्किल्स सो दैट वी कैन ऐड वैल्यूज़ इन आर कम्युनिटी। नेक्स्ट इज रिड्यूस इनइक्वलिटीज। सो हाउ वी कैन रिड्यूस इनइक्वलिटीज़ मीन्स हमारे जो भी हमारे आसपास लोग रहते हैं, जो भी सोसाइटी के लोग हैं, उनके बीच में जो भी इनइक्वलिटी है वो कैसे रिड्यूस हो, यानी कि सब आपस में क्या हो, इक्वल हो। टू रिड्यूस इनइक्वलिटी वी कैन बी हेल्पफुल टू वन अनदर। हम एक दूसरे का जो भी डिफरेंस है हमारे बीच में उसको रिमूव करने के लिए हमें एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए। वी शुड बी फ्रेंडली विद एवरी वन। वी शुड इंक्लूड एवरी वन वाइल वर्किंग और प्लेइंग। We can help others by including everyone, whether they are small or big, girl or boy, belong to any class or caste। तो inequality जो है बिकॉज ऑफ स्टेटस हो सकता है, बिकॉज ऑफ कास्ट हो सकता है, बिकॉज ऑफ जेंडर हो सकता है। तो ये सारी इनइक्वलिटीज़ हमें रिड्यूस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें मिलजुल के काम करना पड़ेगा, एक दूसरे के साथ फ्रेंडली बिहेव करना पड़ेगा। सो इन दिस वे वी कैन रिड्यूस इनइक्वलिटीज़। तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन आया है सैम्पल पेपर में, दैट हाउ कैन वी रिड्यूस इनइक्वलिटीज़, गिव 2 पॉइंट्स। नेक्स्ट इज क्रिएटिंग सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज। सस्टेनेबल मीन्स जो लोग नेचुरल रिसोर्सेज इस तरीके से यूज़ कर रहे हैं जिससे कि फ्यूचर जनरेशन कॉम्प्रोमाइज़ ना करे। तो कैसे कर रहे हैं, सेव एनर्जी बाय स्विचिंग ऑफ लाइट्स एंड फैंस व्हेन नॉट इन यूज़। यूज़ नेचुरल लाइट एज मच एज पॉसिबल। तो जब नेचुरल लाइट है तो हमें नॉर्मल लाइट को स्विच ऑन करने की ज़रूरत नहीं है। यूज़ एनर्जी एफिशिएंट लाइट्स लाइक LED बल्ब्स एंड अप्लायंसेज। Next is be responsible consumer and producer. Reuse paper, glass, plastic water. Taking cloth back to market, carrying fruits and vegetables. Donate things which you don't use such as clothes, furniture, food. इनसे क्या होगा, reuse होगा, चीज़ें वेस्ट नहीं होंगी। Buy and ईट सीजनल फ्रूट्स वेजिटेबल्स फ्रॉम लोकल ग्रोअर्स। तो इससे क्या होगा, सीजनल फ्रूट यूज़ करके ओबियसली जो भी पेस्टिसाइड और कोल्ड स्टोरेज की वजह से जो भी एनवायरनमेंट डिग्रेड होता है वो सारी चीज़ें नहीं होंगी। रिपेयर लीकिंग टैप्स एंड पाइप्स टू अवॉइड वेस्टिंग वाटर। तो वाटर जो है वेस्ट है उसको रिड्यूस करने के लिए वी शुड रिपेयर लीकिंग टैप्स। सॉर्ट एंड ट्रीट गार्बेज बिफोर डिस्पोजिंग। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि कौन सा बायोडिग्रेडेबल गार्बेज है उसे अलग करा, और जो नहीं है नॉन बायोडिग्रेडेबल है उसे हमें रिसाइकल, रीयूज़, अपसाइकिल के लिए भेजना चाहिए। नेक्स्ट इज प्रोटेक्ट लाइफ बिलो वाटर। टन्स ऑफ प्लास्टिक इज़ फाउंड इन द सीज विच इज़ किलिंग मैरीन लाइफ। तो इसको कैसे रिड्यूस किया जा सकता है कि लोगों में अवेयरनेस क्रिएट की जा सकती है दैट दे शुड नॉट डिस्पोज प्लास्टिक और गार्बेज इन सी। Protecting marine life, saving our oceans from pollution is necessary to preserve the marine life। तो यहाँ पे मैंने एक लाइन बोली कि वी शुड क्रिएट अवेयरनेस अमंग द पीपल कि उन्हें सी में नहीं डिस्पोज करना चाहिए। तो सी में वाटर कहाँ से जाता है, रिवर से ओबियसली। तो अगर रिवर में गार्बेज नहीं होगा तो सी में भी क्या होगा, गार्बेज नहीं जाएगा। तो सबसे पहले तो हमें जो गार्बेज है उसको जो है रिवर से हटाना है। एंड ये ओबियसली बाय गोइंग टू सी बीचेस, लोग वहाँ पे भी क्या करते हैं, गार्बेज जो भी प्लास्टिक्स होता है उसे फेंकते हैं तो फिर वो सी में जाता है। तो उससे क्या है, इट इज़ हार्मिंग मरीन लाइफ। तो बाय क्रिएटिंग अवेयरनेस अमंग अदर्स, और ख़ुद भी अवेयर होके जो भी आप गार्बेज फेंक रहे हैं तो उन्हें डस्टबिन में ही फेंकें। तो इससे क्या कर सकते हैं, यू कैन कंट्रीब्यूट इन प्रोटेक्टिंग लाइफ बिलो वाटर। नाउ द लास्ट वन इज़ प्रोटेक्ट लाइफ ऑन लैंड। तो अब हमें लाइफ ऑन लैंड यानी कि जो भी ट्रीज़ हैं, जो भी सॉइल है वो सब पॉल्यूट ना हो, जो भी प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं उनको भी क्या करना है, वी हैव टू कंजर्व दैम ऑल्सो, प्रोटेक्ट दैम। सो कटिंग ऑफ ट्रीज इज लीडिंग टू सॉइल इरोजन एंड मेकिंग लैंड ड्राई।
unusable for cultivation. Planting more trees to replace the ones we have cut is an important step towards sustainable development. तो हमें इस गोल को अचीव करने के लिए कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं? वी कैन प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज, वी कैन स्टॉप वेस्टिंग वाटर या फिर रेन वाटर हार्वेस्टिंग को यूज़ करके बाय स्विचिंग ऑफ द लाइट्स वी कैन प्रोटेक्ट लाइफ ऑन लैंड. सो ये सारी चीज़ें तो आपने साइंस में भी पढ़ी होंगी. अभी आपको क्या करना है, ये जो भी गोल्स हैं इनके नेम अच्छे से लर्न करने हैं, फिर इनके अंदर तो आप कंटेंट खुद से लिख ही सकते हैं ना. सो आपको ये रिड्यूस्ड इनइक्वालिटीज, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, ये सारे जो मेन ये गोल्स हैं यू कैन लर्न यूजिंग दिस पिक्चर. इस पिक्चर को आप पेस्ट कर सकते हैं कहीं पर, जिससे कि आप बार बार इसको देखें और आपको ये लर्न हो जाए. सो आई होप आपको ये यूनिट क्लियर हो गई होगी, कोई डाउट नहीं होगा. अगर इन केस कोई डाउट है सो यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स एंड आई एम गोइंग टू पोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू दीज 2 यूनिट्स, एंटरप्रेन्योरल स्किल एंड ग्रीन स्किल्स. सो स्टे ट्यून्ड, प्लीज़ लाइक एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो, शेयर भी करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ. और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.